یہ جو کمرشل ایکٹیویٹی والے ہیں، ایک ہے ڈومیسٹک کنزیومر، وہ 20% ہمارا ڈومیسٹک کنزمپشن میں جاتا ہے. یہ نوٹ کریں ذرا آپ، آج تھوڑا سا آپ کو میرا اس پہ 20% کنزمپشن ہے ڈومیسٹک ہماری کنزیومر کی، جو عام کنزیومر ہے ڈومیسٹک کنزیومر. 80% ہماری جاتی ہے کارپوریٹ اور کمرشل سیکٹر میں. اس میں مٹھائیوں والے ہیں، اس میں بسکٹس والے ہیں، اس میں بریوریز والے ہیں، یہ بوتلوں والے. فارمل اور انفارمل سیکٹر، جو بوتلیں آپ کو پتہ ویسے ہی بنا لیتے ہیں، مٹھائی، اور یہ جو بیکری والے ہیں، کیک، پیسٹریاں، یہ وہ سارا مٹھائی لگ. اب ان کو جب ہم یہ سارا، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، میری بات سن لیں نا، میری نہیں آپ سے مراد نہیں، میں ہاں میری جب میرا بات سنیں گے، ریزننگ لاجک سنیں گے نا، جب ان کو 119 میں مل رہی تھی، ذرا 119 میں مل رہی تھی، کیا انہوں نے بوتل کی کوکا کولا کی پرائس کم ہوئی؟ یار ایسے میری بات تو سن لیں نا، ایک فری مارکیٹ ہے، اس طرح نہ کریں. میں بات پوری بات سن لیا کریں آپ، ذرا تھوڑے میڈیا والے امپیشنٹ ہوتے ہیں. جب کیک سستا ہوا، مٹھائی سستا ہوئی، یا تو ان کو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو پرائس کم ہوتی ہے تو 80% والا جو سیکٹر ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اب جو وہ میں منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، فائنانس منسٹر صاحب کی، ان کی جو کینڈی بنتی ہے، جو ان کی مل ہے، اس میں پتہ کریں کہ کتنے ان کے 1000 یا لاکھ ٹن استعمال ہوتی ہے چینی. جب ان کو سستی 10 روپے مل جائے گی تو اس کا ملٹیپلائی کر لیں اس سے. تو میرا مطلب ہے یہ باتیں تھوڑی سی پتہ بھی ہوں گی آپ کو. کچھ اس سیکٹر کو چاہیے کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اور ان کو بھی تھوڑا سا ان کا جو کانڈکٹ ہے یا بیہیویئر ہے، اگر سستی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے نا کہ بوتل 80 روپے کی بجائے، مجھے نہیں پتا کیا ریٹ ہے، 80 روپے کی بجائے 50 کی کر دیں، 30 کی کر دیں. کیا وہ کلو جو مٹھائی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے جی؟ کیک تو ایک بناتے ہیں گھر میں، بڑی اچھی ہماری بچیاں بڑا وہ کیک بناتی ہیں جس کی 2000 میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسپیشل 10,000 کے لوگ آرڈر دیتے ہیں گھروں پہ، ایک خاص طبقہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو 20% اور 20% میں بھی کوئی ڈیبٹیک ہیں، اور کچھ میں اس طبقے کی بات کروں، کچھ استعمال ہی نہیں کرتے، کم کرتے ہیں جو اوپر کی کلاس ہے. اور جو نہیں کم جو کرتے ہیں نا، کم کرتے ہیں، وہ کلبوں میں بیٹھ کے نا، جو ڈیبٹیک ہے وہ کلبوں میں بیٹھ کے سارا دن چینی پہ بات کرتے ہیں. جی جی پلیز، میں نے بولے سر، اس جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ریاض تعین صاحب جی 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 آگے بھی بتا دیں، جی جی سی ٹی بھی بتا دیا تھا، اس سے آگے ڈپٹی بیورو چیف، ماشاء اللہ بتایا نا جی. صاحب 44 ارب روپے جرمانہ کیا شوگر مل کو، یہ آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی. ہاں اب اوور آل شوگر مل کارٹل کی بات کریں، ہر شعبے میں کارٹل ہے، گورنمنٹ کیا گورننس ہے اس کی؟ 44 ارب روپے جرمانہ ہوا کمپٹیشن آف پاکستان کا، اور وہ کورٹس میں چلے گئے. 2 سال ان کا اسٹے آرڈر رہا. ابھی سندھ ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ سارا ان کا اسٹے آرڈر خارج کر کے کمپٹیشن کو دوبارہ کیس رہتا ہے. تو یہ مافیا آج سے نہیں ہے، یہ بہت سالوں سے آ رہا ہے. اور اس کارٹل میں جس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ کارٹل ہے، اس میں تمام حکومت میں بیٹھے منسٹرز، پرائم منسٹر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ہمایوں اختر خان، ہارون اختر خان، زرداری فیملی، ذوالفقار مرزا، جہانگیر ترین، یہ تمام کارٹل ہے. اس کو آپ اون کریں، کارٹل کے خلاف کارروائی کریں. یہ ان کی جسٹیفیکیشن نہ دے کہ وہ مارکیٹ میں چینی ٹھیک ہے اور ہم میڈیا غلط ہے اور حکومت ٹھیک کر رہی ہے، یہ نہ کریں سر. میں آپ کو منڈی کے ریٹ آج بتاتا ہوں. اچھا چلیں، میں آپ نے کیا کارٹل کی بات سن لیں، ہم نے بڑی بردباری سے آپ کی پوری تقریر سنی ہے. آپ ہمارا کوشچن لے لیں، باقی لوگوں کے بھی آئے گے کوشچن، وہ اس کو تحمل سے سن لیں، پھر اس کا جواب دیں نہ دیں. آپ کی نہیں دوں گا جواب. منڈی کا جو ریٹ ہے نا سر، میری خود بات ہوئی منڈی میں جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شوگر ملیں ہمیں 165 روپے میں چینی نہیں دیتا. گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں دلوائے، ہم سستی کر دیں گے. چھوٹے دکانداروں کو ڈی سی پکڑ رہے ہیں، پولیس پکڑ رہی ہے، اور یہ جو بڑے ہول سیلر ڈیلر تو شوگر ملتے ہیں ان کو نہیں پکڑ رہے.
उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती कार्टल्स के खिलाफ जो कि पब्लिक पॉइंट आ गया, दो आपके पॉइंट। कार्टल का जो आपने बात की है, मैं देखें ये इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग जो है एक, पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बताऊं, ये बात नहीं है कि वो मेरा बॉस है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मैं हल्फन बात करता हूँ कि मिफ्ता ने भी टीवी पे कहा है कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैंने पूछा था मैंने एक्सपोर्ट करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं मत करे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, हमें भी उन्होंने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए। अब भी उनका ये है कि मैंने इस कार्टर के साथ बंदोबस्त करना है, और इस मिल ओनर्स का ये जो भी है इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो नया सीज़न आ जाना है, क्रशिंग सीज़न आ जाएगा। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इसमें क्या क्या मेजर्स ले रही है और क्या क्या मेजर लिए हैं हमने, क्या क्या मतलब कहाँ का सेक, वो सेक नहीं कहते, कहाँ का सेक पहुंच रहा है, कहाँ का जो आप नाम ले रहे हैं कहाँ का सेक पहुंच रहा है। दूसरी बात आपने की मंडी की, मंडी देखिए एक डी, पीछे मैं फिर आ जाऊँ, एक डी रेगुलेशन की बात हो रही है, एक कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हेडेड बाई अवैस लगारी साहब, तो वो भी काम कर रही है, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे कि आपको मिलेगा ये सेक्टर जो आप बात करते हैं ना, ये मेरा मामला ये ठीक होने पे आए हैं, और शहबाज साहब ने ये ठीक करने हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको बता दूं, उन्हीं की गवर्नमेंट में अभी आने वाले दिनों में होगा। जो आपने मंडी की बात की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई ऐसा, मुझे पता चला था कि परसों डीसी इस्लामाबाद को मैंने कहा कि मेलोडी में ये रेट है, मैंने सारा चेक किया और फलां जगह एक 190 195 है डीसी, ये जो हमारे इस्लामाबाद है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वहाँ पे है, तो उसके पास चीनी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो चीनी आपको क्यों कहते हैं, हुआ क्या कि इस्लामाबाद अटैच किसी मिल के साथ होने से रह गया, तो वो गलती थी जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मिलें, तो मैंने उसी वक्त कहा ये इरफान साहब हैं इधर डीसी, उनसे पूछ लें, शाम तक एडिक्वेट यहाँ सप्लाई थी, आज भी है। सुबह मैंने वॉइस नोट भी है उनका मेरे फ़ोन में, तो उन्होंने कहा जी हमें पूरी मिल रही है, तो मैंने कहा ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, आपके पास सफिशेंट स्टॉक होना चाहिए, किराने वालों को दें। हर डीसी पिंडी है, जिसके पास नहीं है वो जाए, अगर उसको प्रोवाइड ना करे तो मुझे आगे एक फ़ोन कर दें बस, तो सबको चीनी मिल रही है, ज़रूरत के मुताबिक आ रही है, 165 पे आ रही है। और उन्होंने बड़े बड़े डीलरों को छोड़ के जो लोकल डीलर हैं उनको एंगेज किया है ताकि वो लाएं और आगे किराने वालों को दें, उसमें उनकी जो कैरेज है वो डाल के। जी आप भी चीनी खाती हैं? मेरा सवाल ये है सर कि शुगर कोई ऐसी कमोडिटी है नहीं कि जो साल के 12 महीने इस्तेमाल ना हो, या कुछ महीने इस्तेमाल हो और कुछ नहीं हो, या पेरिशेबल कमोडिटी हो जिसकी वजह से उसको रखना मुमकिन ना हो। तो एक तो हुकूमत जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, स्पेशली PMLN की हुकूमत जब भी होती है, तो जिसको कि कहा जाता है टैग है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फरोग देती है या सपोर्ट करती है, तो उसी में ये चीनी या आटे का बहरान पैदा क्यों होता है? क्या ये 12 महीने इस्तेमाल होने वाला कमोडिटी, इसके ऊपर इस तरह से काम नहीं किया जा सकता, या आबादी के तनासुब से ऐसे काम नहीं किया जा सकता कि कितनी शुगर रिक्वायर्ड है, कितनी चाहिए है, कितनी गोदाम में होनी चाहिए? और जैसे कि आपने अभी बताया भी कि आपने एक सरप्लस चीनी रख ली थी कुछ लाख टन, 5 लाख, तो क्या एक्सपोर्ट, जैसे कि अभी आगे क्रशिंग सीजन आ रहा है, इसके खराब तो होना नहीं था, क्या एक्सपोर्ट के लिए वेट नहीं किया जा सकता था ताकि ये देख लिया जाता कि इस वक्त नीड कितनी है या कितनी हो सकती है, और फिर उसके बाद जो सरप्लस होती वो स्टेबल प्राइसेस के साथ कंट्री में उसको सरप्लस को आप अच्छे तरीके से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब ये एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट, फिर एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट, और इस पे जो फार्मर के बारे में आप बता रहे हैं, फार्मर इस वक्त ही हो रहा है, फार्मर को उसके सही पैसे नहीं मिले हैं। दूसरी बात ये सर कि जो मार्केट है उसमें किस हद तक रसाई है आम बंदे की, और
क्वालिटी क्वांटिटी और प्राइस कंट्रोल के लिए क्या एश्योरेंस दे रही है गवर्नमेंट, उसके लिए क्या देखिए, एश्योरेंस दे रहा है? आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, लेकिन मैं जो आपने बात की है ना, वो बड़ी सही सही बात है कि होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर एक कमोडिटी है जो 12 महीने इस्तेमाल होती है, उसकी शार्टेज ना हो, उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन ना आए, कोई हायर साइड पे ना जाए और आम कंज्यूमर की एक्सेस में, रीच में रहे इसमें। लेकिन मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि हम चीनी का स्टॉक तो हमारे पास आ गया कि ये है जो आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की। उसके बाद अगला जो सोइंग एरिया है उसको, उस पर प्रोजेक्शन होती हैं, जिस तरह वीट की होती है, राइस की होती है। ये सारा हमारे एक सिस्टम है पूरा कि प्रोजेक्शन कितनी अगले साल होगी। उसमें आया कि 2% एरिया ज़्यादा लग गया है और जो क्रॉप है वो बड़ी हेल्दी है। उसकी जो प्रोजेक्शन थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7.2 मिलियन टन की, मैंने तो 7 कहा ना, 7.2 मिलियन टन का था कि शुगर आएगी। उसका कंटेंट्स देख के पीछे जो प्रोजेक्शन, मेरी बात सुन लेना। अब मैं उसका ये कहता हूँ कि देखे ना, और अक्टूबर में जाके दी जब सीजन चलने वाला था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त ना ये होते तो क्रॉप वालों को इस तरह प्राइस ना मिलती जो 450-700 पहली दफ़ा हिस्ट्री में मिली है। पिछले साल 350 तक रहा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, देखें पहले भी बीट की हम इस तरह करते हैं, सारे करते हैं। और खुदा न खास्ता आज हम कहते हैं जी हमारी फसल फलां जो है अच्छा होगा कपास का, उसमें कोई, अब कपास के मेरी एस्टिमेशन है कि पिछले साल से ये डबल होगी। ये जो हमारी 4.5 है ये 9 या 10 मिलियन होगी बेल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी एक हमारी गवर्नमेंट में काम हुआ है। लेकिन अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या फ्लड आ जाता है तो उसको तो ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसको आप उसकी प्रोजेक्शन आप नहीं कर सकते। अगर हीट ना आती, जिसका भी हीट रेजिलिएंट हम सीड निकाल रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट पैटर्न चेंज कर रही है। मैंने इस दफ़ा जो फसल लगाए हैं अपने, मैं जिम्मेदार हूँ, उस पैटर्न से लगाया क्यों पिछले साल मेरा जो राइस का फसल था, पैडी का, वो ख़राब हो गया, वो हीट आ गई, अर्ली था, तो इस दफ़ा मैंने लेट लगाया है। इसलिए कि भाई ये पैटर्न बदलना पड़ेगा हमें, उस हिसाब से हम जा रहे हैं उस पर। और आप इंशाल्लाह जो बात कर रही हैं हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आइंदा इस किस्म के फैसले करेंगे जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी 12 बजे मैं एक पूरा न्यूज़ पैकेज न्यूज़ सर्वे करके आई हूँ हमारा मार्केट में। होलसेल वालों से भी मैंने पूछा, रिटेल वालों से भी पूछा, और जो सारे वहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं उनसे भी पूछा। कह रहे सब ने ये कहा कि 3-4 दिन से चीनी दस्तयाब नहीं है। मैंने जब होलसेल वाले से पूछा दुकानदार से, तो उसने कहा कि हमें 173 का जो रेट दे रही है, जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें 180 से ऊपर मिल रही है, इसलिए हम नहीं लेकर आ रहे हैं। ये जो ज़मीना दोस्त हैं, आप लोगों ने फिगर मेंटेन कर लिए हैं, ठीक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इन ज़मीना दोस्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि मार्केट कुछ नहीं नॉर्मल फ्लो के साथ आज साल तीन के नहीं। ये बिल्कुल जो मैं बताऊं कि शायद थोड़ा सा जब जाते हैं आप तो जो सारफ भी होता है ये बात और तरह करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के किसी जगह शॉर्टेज नहीं है। मैं आपको यकीन दानी करा रहा हूँ। ये डीसी साहब हैं, अभी फ़ोन पे बात कर लेते हैं कि नहीं, मुझे लिफ्टिंग का बता देते हैं कितनी लिफ्टिंग हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी गई है, डिस्पैच ट्रक नंबर वगैरह हमारा सिस्टम है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं मैं दोबारा इसको देखता हूँ, इंशाल्लाह शाम तक आपको ये भी शिकायत जी। ये है सिंपल सी कि आप खुद बहुत बड़े किसान हैं, क्या आप समझते हैं कि किसानों के साथ ज्यादती नहीं होती? नंबर 1 आपकी गवर्नमेंट, नंबर 2 ये जो जी बताएं। क्या तुम डीसी का काउंटर पर करोगे तो कम आसान जी। सेकंड, ये जो चीनी का रेट आप खुद कह रहे हैं 119 रुपये, मतलब इसमें कोई शक भी नहीं है। जहाँ तक चीनी की शॉर्टेज है की बात हो रही है, शॉर्टेज शायद नहीं है, क्योंकि जो DHA या बैल है उधर भी जो DC काउंटर है 162 की
दस्तयाब है, जो DC काउंटर वहाँ बाकी बस जगह पे 173 की है, लेकिन 119 से 173 पे जो लाए हैं, जो आप ही के साथ लेफ्ट राइट पे बैठे रहते हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, तो उन्होंने साइड पे कर दो, मैं ना नहीं आना। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए 119 पे जो थी वो मैं कहता हूँ क्रैश कर गई थी प्राइस, और उनका जो लॉस था इररिपेयरेबल लॉस था। अब मार्केट फोर्सेस काम करती हैं। इस दफ़ा जब 30 अप्रैल तक तो हुआ, जब उस वक्त सीज़न क्लोज हुआ है क्रशिंग, वहाँ तो प्राइस ठीक थी, 130 रुपये थी, 130 रुपये थी, आपको पता है, आपने भी ली होगी रमज़ान शरीफ में। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि जब प्रोडक्शन क्लोज हुआ, सीज़न क्रशिंग सीज़न 30 अप्रैल को होता है ना जी, और 5.8 हुई। अब वैसे हम भी देखें ना, बिल्कुल हमारा भी जो सिस्टम है सारा कि यार ये तो बिल्कुल ही 1 मिलियन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी मोर देन 1 मिलियन कम हुई है। तो 5 रुपया फॉर्चुनेटली हमने रखी हुई थी, जो कभी नहीं रखी। हमने पहली दफ़ा वो बफर स्टॉक मैंने रखा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो 6.3 होगी, जो जिसकी मैं कह रहा हूँ कि 20 लाख आज हमारे पास पड़ी है, जो हमारे पास अगर स्मूथ चले तो ये हमारे क्रशिंग सीजन आने तक ये 2 लाख 3 लाख सरप्लस है। सरप्लस 15 नवंबर को जो, लेकिन ये 1 नवंबर को ये मिलने चलेंगी इंशाल्लाह। सर, जी आप कह रहे हैं कि कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं है या 170-72 में अवेलेबल है, आप मान नहीं रहे हैं, तो हल्फन आपको कह देते हैं, मैं भी रिपोर्ट बना के आया हूँ, 2 लाख की आबादी है बड़ी मांग सरकार की नाक के नीचे। वहाँ पर अगर किसी एक भी स्टोर से या किसी एक भी दुकान से आपको चीनी अगर मिल जाए तो आप आके मुझे आप गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट बना के पूरा सर्वे करके आया हूँ, कहीं पर भी चीनी दस्तयाब नहीं है। तो ये कि जिसको आपने भेजा है आप उसकी इंक्वायरी करवाएं कि वो किसी के साथ मिला हुआ तो नहीं है जिसने आपको गलत रिपोर्ट दी है। सर, इसके अलावा एक और बात हो रही है, आजकल कमेटी में भी कई बार डिस्कस हुआ है कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड में अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, कोई पार्लियामेंटेरियंस नहीं है उसमें, आप अपोजिशन से या हुकूमती बैठक से उसमें सियासतदानों को क्यों नहीं लेकर आते, और साथ में उसमें चीनी सार्फिन नहीं है, कमेटी में भी बार बार कहा तो उसमें कम से कम आप कंज्यूमर्स को शामिल करें। सारे उसमें वही लोग हैं, शुगर मिल्स मालिकान हैं और बाकी सारे। मसला आखिर में एक बात कि ये जो शुगर माफिया है, आज तक इसको ये जो इनकी मोनोपोली है इसको खत्म करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए आज तक कोई पॉलिसी बनी नहीं है, ना ही आपकी तरफ से कोई कोशिश की गई है, तो इस हवाले से कुछ करें। देखिए, पहले जो है आपने अवेलेबिलिटी की पहले तो अवेलेबिलिटी की बात की आपने। सप्लाई, मैं समझता हूँ सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और मुयसर है। जो नहीं दे रहे, आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन वो नहीं दे रहे, वो उनकी, मैंने जो पूछा है कि क्या इशू है जो इस तरह की हरकत करते हैं लोग, वो कहते हैं कि जी इन उन लोगों जो प्राइवेट तौर पे कहते हैं कि हमने महंगी चीनी पहले ली हुई है, जो आप स्टाकिए या डीलर या जो भी है, माफिया शाफिया जो भी है, उसकी वजह से वो महंगी बेचना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास तो है नहीं, अगर महंगी आप कहेंगे तो आपको दे देंगे। तो ये भी एक इशू आ रहा है जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि जी आप शुगर एडवाइजरी बोर्ड में, क्या मैं अवामी नुमाइंदा नहीं हूँ? मेरी तो कोई मिल नहीं है, मैं इलेक्ट होता हूँ, लोगों को वोट लेके आता हूँ, जो मुझे जानते हैं, मैं तो उन लोगों में नहीं हूँ जिसमें मैं तो सही मेरा हक है। मिनिस्टर कॉमर्स भी है जो जाम साहब हैं, और भी मिनिस्टर एक दो हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, बाकी सारे जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो वहाँ पे होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के केन कमिश्नर, शुगर मिल वाले भी, ग्रोअर्स एसोसिएशन वाले भी, जी फार्मर एसोसिएशन। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तीसरी बात बड़ी अहम है कि इसको हम डीरेगुलेशन पे जा रहे हैं, डीरेगुलेट कर दें ताकि लाइसेंसेस जो मिल लगनी है, जिस तरह राइस मिल लोग लगाते हैं, जिस तरह आप जिनिंग लगाते हैं, फ्लोर में लगाते हैं, टैक्स जाहिल बंदा लगा ले, आप लगाएं, कोई भी लगाए, उससे हेल्दी कंपटीशन भी आ जाएगा। और जो आप कहते हैं जी एक ख़ास ग्रुप है जिनकी मिलें हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लाइसेंस फ्री कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री कर दें, और उसमें कोई मसला ही नहीं रहेगा।
بالکل گورنمنٹ بھی اس سے نکل جائے گی. ظہیر صاحب سمجھ سے سر میرا سوال کچھ کلیریفائی آپ نے کر دیا ہے کہ یہ کمیونیکیشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے، اب آپ اس پر جا رہے ہیں، یہ جو بین ہے 82 جو شوگر ملز ہیں اس کے علاوہ نئی لگ نہیں سکتی، یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے پانی کا ایشو بنایا جاتا ہے کہ گنا پانی زیادہ لے جاتا ہے، اور جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ لوگ ختم کرنے پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ نمبر ایک. دوسرا چھوٹا سا سوال یہ کہ کچھ خبریں یہ بھی چلی ہیں لاہور سے آپ کی یونیورسٹی کے نام سے چلی ہے، دوسری یونیورسٹی کے نام سے، کہ کچھ شوگر مل مالکان ایسے ہیں جن کا نام PCL میں ڈالا گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو PCL میں؟ دیکھیں جو پہلے بات آپ نے کی ہے وہ بڑی اس وقت جو گورنمنٹ کمیٹی بنی ہے وہ اس کو تو دیا ہے کہ 30 days میں آپ رپورٹ سبمٹ کریں گے، لیکن ہوپ فلی یہ کرنے جا رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے گنا پانی کی آپ نے بات کی، اس پہ کل ہم دیکھ رہے تھے گنا پانی کا جو میرا ذاتی بھی پرسیپشن تھا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہا جاتا ہے. تیسری بات جو آپ نے کی ایکشن کیا لیے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو ECL پہ ڈالا ہے، بالکل ڈالا ہے، اور کچھ کو بہت سارا اور بھی آرم ٹویسٹنگ کی ہے. جو بڑے بڑے ہولڈر ہیں یا بہت بڑے اس میں مینیپولیٹر ہیں یہ گورنمنٹ نے، اور ہم نے بے شمار کریانے پہ بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں گڑبڑ کہ ان کو چینی تو 165 میں دے رہے ہیں. تو میں صبح ویسے میں آپ کو بتاؤں جی کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اپنے ضلع میں بھی میرا خیال ہے میرے ساتھ میرا بندہ تو نہیں آیا، وہاں فون کرتا ہوں اسپیکر آن کر کے، میں نے کہتا ہوں بتائیں کیا حال ہے نارنگ منڈی کا. میں آپ کو آنسٹ ٹو گاڈ کہہ رہا ہوں، مجھے مطلب میں تو خود چیک کرتا ہوں تاکہ میں معاملہ ٹھیک کروں. تو وہاں میں مریض کے سے پوچھتا ہوں، میں شیخ پورہ سے پوچھتا ہوں سٹی سے جو میری ایکسیس میں، باقی میں DCO سے بات کرتا ہوں. تو وہاں پہ صورتحال وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں رات کو اتنے توڑے ملے ہیں اور یہ پرائس ہے اس وقت ہم دے رہے. تو ان کو تو ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی، لیکن بڑے شہروں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جائیں گے الفتح پہ جو مجھے بتایا گیا، جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ DC بحریہ کی بات کر رہے تھے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے کہ DC کاؤنٹر وہاں 173 کی مل رہی ہے، 162 مل رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اور جو دوسری بیچ رہے ہیں مجھے یا آپ کو جو پیکنگ ان کی اپنی ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں گورنمنٹ کی ایک انفورسمنٹ کی کیپیسٹی ہے، لیکن وی آر ڈوئنگ وٹ ایور وی کین ڈو. آخری سوال ارشاد انصاری صاحب. کراتے ہیں جی. پریس کانفرنس میں جو آپ نے یوز کیا اس میں کچھ سیلف کنٹراڈکٹری ہیں، کچھ کنفیوژن ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 6.3 ملین ٹن جو ہے چینی کی پیداوار ہوئی ہے جو ہمارے کنزمپشن اور ضرورت کے لیے پوری ہے اور بفر اسٹاک کی ہے. جب آپ کی ضرورت پوری ہے تو پھر آپ امپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امپورٹ ہوگی قیمتیں جو ہے وہ معمول پہ رہیں گی، بہتر ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ سر یہ جو ایشو ہے کہ آپ نے سمجھتے کہ خالص کل گورننس پلس ریٹ آف اسٹیٹ کا ایشو ہے. یہ دونوں کام حکومت کے اپنے کرنے کے جو آپ میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور سیکٹر پہ ڈال رہے ہیں. سیکٹر کیسے چاہیں گے کہ ان کا نقصان ہو اور وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ بن ہیں. جو آپ ملوں کی بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کریش کر گئی تھی، ملوں کا نقصان ہو. آپ کی بات مانیں یا پارلیمنٹ کے فلور کے کمیٹی کے اندر جو ایڈیٹر جنرل پاکستان نے جو رپورٹ دی ہے جس کو انہوں نے نام دیے شوگر ملوں کے نام بھی دیے، انہوں نے کس نے ارب روپے کمائے، ان کی رپورٹ کو مانیں یا تو وہ رپورٹ غلط ہے کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں میرے خیال ہے ساری چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ جو رپورٹ ہے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. میں اس پہ آپ کو بتاؤں جو آپ سمجھے شاید ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں 5.8 پروڈکشن ہوئی ہے، 5 لاکھ تھی میرے پاس، میں نے رکھی ہوئی تھی بفر اسٹاک اسٹریٹجک ریزرو سے ملے 73 ایسے ہی، تو وہ 6.3 ہوگی. 6.3 ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کی جب یہاں پوزیشن پہ آپ ہوں گے نا تو اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے پرائز کو. جب آپ اس طرح، یہ اس طرح تو نہیں ہے، کوئی راشننگ تو نہیں ہے نا کہ راشن ہے یا کچھ ہے، روڈنگ ہو سکتی ہے، اس کی بلیک میل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ کچھ سپلائی جو بہتر ہوگی تو اسے پرائسز جو ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اسٹیبلائز ہو جائیں گی، نیچے آ جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سپٹمبر میں دیکھیں جب چینی پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح نیچے جاتی ہیں. دوسرا آپ نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی،
देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं 4 साल चेयरमैन रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो मुझे पता है वहाँ पे जिस तरह MNAs हैं या सारे बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, वो अपने अपने अंदाज से उन्होंने कुछ मीडिया पे खबरें भी चलती हैं, लगवानी होती हैं। तो जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा है, उसने उससे कहा है जो उनको एक्सपोर्ट्स के साथ सहारा मिला। अब देखें ना, एक तरफ बात करते हैं कि जी अगर 1 रुपया बढ़े, मीडिया में ये भी बात आती है तो 750 अरब का फायदा होता है। अब देखें ना ये फिगर 750 अरब का को क्या, तो ये 300 जो उसने किया है या 200 किया है वो बिलियन का मेरा ओवरऑल वो जो कहता है, लेकिन अगर उनके वो जो 119 वाली प्राइस है, अगर उस पर इसका मतलब जब 1 रुपया कम होता है तो उसके फिर 750 अरब लॉस होता है उनको। ये नहीं है कि जब 119 पे आ गई तो उनको कोई ट्रिलियन लॉस हो गया। तो वो पिछले जो साल था उनके लिए बहुत ही एक डरावना था, और उसके लिए मैंने समझा कि जो करोड़ को है वो 450 से 700 प्राइस मिली है। आइंदा और भी बेहतर होगा। बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, डीरेगुलेशन का हो रहा है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले रहे हैं, गवर्नेंस तो हमारी मिसाली है। देखिए शहबाज साहब की गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और कोई रू रहत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह का मैं यहाँ खड़ा हूँ आप मुझसे लफ ले लें कि कोई रू रहत नहीं है किसी के लिए भी। और मेरे पास जो लोग हैं उसकी मैं बता दूं, आप अगर हारून अख्तर की बात करते हैं तो हारून अख्तर जब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, शुगर बोर्ड, ये इंडस्ट्री में था, ऐसे ही है ना जी किसी को, और मैं उधर मिनिस्टर था। और जब हारून अख्तर को चार्ज दिया SAPM बना के, तो उसने फौरन कहा कि जी ये बोर्ड यहाँ से ले जाए। फायदा तो नहीं हुआ था उसको। फिर मेरी शामत आनी थी आपके सामने, तो वो मेरी तरफ ट्रांसफर हो गया। तो क्या काश क्या उधर ही होता, उधर ही रहता तो आज मुझे इतनी लंबी आपको एक्सप्लेनेशन, और होपफुली कुछ चीज़ें मैं समझा सका हूँ, कुछ मैं भी उस तरह ना सेटिफाई कर सका हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट ऑन ट्रैक है, गवर्नमेंट मोनिटर कर रही है, सुबह शाम मोनिटर कर रही है। मैं रात सोने तक करता हूँ, मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ। सुबह उठते हुए सबसे पहले ये काम करता हूँ, रिपोर्टें आता हूँ, निकलता हूँ, अभी भी घंटे बाद पूछता हूँ जो मेरा कंट्रोल रूम बना हुआ है। लेकिन वी आर डूइंग आवर बेस्ट जी, और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। कुछ आप भी ताउन करें।